Thank you, Manish ji, for nice introduction, and thank you, Rahul ji, for felicitation. So my name is Lalit Hundlani. I am a executive coach, corporate trainer, motivational speaker, and an international best-selling author of multiple books, carrying with me close to 21 years of experience. So primarily what I do as a coach, trainer, and a speaker, I mostly work with corporate professionals and the working professionals. Now, before doing so, I was myself a part of corporate world for close to 18 years. So I was on that side, so I understand the problem areas or the challenges that one goes through while working in a job or trying to do the work that you want to. So in my current role, my aim is to help people in overcoming certain challenges that will help you in becoming a better version of yourself. That's in crux what I do. With professionals I work, helping them unlock their potential so that they start growing in their profession. So that's a brief introduction about myself and what I do. So these are some of the companies I had worked with. So primarily I come from banking and financial services domain. So I was working into banking and I had a small exposure into real estate as well in the early part of my career. But later on also while I was into banking, I was taking care of mortgages. So it was a close connection with the real estate developers. I have a decent understanding of how you guys operate and what happens on the ground. Okay, so that's a little bit about me. So welcome to the session. And as we are going to start the session quickly, there are certain rules that we follow. So first is of course keep your mobiles on mute. The session duration is going to be approximately 1 hour. Now I have a bad habit of overshooting the timeline sometimes by 10-15 minutes. So if that happens, kindly bear with me. Engage and interact and try to take the notes. So the best way you can take advantage of any training is by making notes of certain things that you are able to connect with, because human memory is short. We have a tendency to forget. And in schools also, we used to take notes so that we could refer later. So that's something which is recommended for you. And most important, these kind of sessions that I usually conduct are interactive, because that will help you. Otherwise, afternoon time, 2:30 p.m. post lunch, we all know what happens. And owing to the limitation of time and space, we can't engage into much physical activity. So that's the limitation we have. Maybe next time when we are meeting for a slightly longer duration, we can do that. Great. Now, before I start, language-wise, English, Hindi, or mix? What's the preference? Mix will do. Yes. Okay. So you guys are comfortable. There is no language barrier. So if there is, kindly let me know. Great. So my first question to you is: how many of you want to be successful as far as your career or professional is concerned? Just by a raise of hand. Okay. So some of you want to be successful. How many of you are already successful? No one. Okay, so what about the third category? They don't want to get success. Is it so? Everybody wants to get successful. It's a hitch. That's why we are not raising the hand. So since every one of you wants to be successful, some of you might be successful to a certain extent, and of course you would like to be more successful. So why I'm asking this question is, if you want to be successful, then pay attention, because whatever you are going to learn today, in some way, वो कहीं ना कहीं आपको आपके प्रोफेशनल करियर में मदद करने वाला है. कुछ चीजें ऐसी होंगी शायद पहले सुनी होंगी, जानते होंगे, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो पहली बार सुन रहे होंगे. But paying attention is important. Why? That's the reason. Okay, many a times what happens, since I was on that side, तो हमारी जो corporate training होती थी तो 90% लोग क्या करते थे, HR ने बोल दिया है, बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा. We had day-long workshops also. तो वहाँ पे भी यही होता था, it's a paid holiday kind of a thing. Why? Because the context setting was not there. It used to be that these trainings are for HR to fulfill their targets and for management to show to the world that we are taking care of our employees. And for employees, we were not having clarity why we need this. So it is for your own good, and whatever we are going to talk today is going to help you. Every one of you over here. Organization comes secondary. Okay, but it is going to help you as an individual. Now let me just share a small story with you. Okay. So once there was a carpenter who was working for a contractor. Contractor का काम घर बनाने का था. So this carpenter was working with him. Very loyal employee. काफी साल इसने काम किया. After few years, when he was getting old, carpenter thought कि अब enough is enough. बहुत टाइम काम कर लिया. अब let me take a early retirement. With that intention,
The carpenter approached his boss, said कि boss, I am done. I have worked for so long and you have been a kind and considerate boss also, but let me go now. अच्छा employee था. He was very good at his work. So employer did not really wanted him to go, but owing to being a good employee, he said ठीक है, you can go. He was very happy और मन में उसके फैलाना चालू हो गया कि अभी what I am going to do post my retirement. Then his boss called and said कि ठीक है आप जा रहे हो, the few days that you have left with you, आप मेरे लिए फेवर करोगे? बोला पता है सर. मैं बोला जाते जाते एक घर और बना के चले जाओ. Now carpenter mentally he was prepared कि I am done, I have to leave. बॉस के साथ अच्छे रिलेशन थे, जाते जाते खराब नहीं करना चाहता तो इससे ठीक है मैं बना दूंगा. मुंह से बोला बट अंदर से मन नहीं था. सो व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड डूइंग इट. जितना अच्छा काम वो शायद अदरवाइज करता, जिसके लिए वो जाना जाता था, उतना अच्छा नहीं किया. मटेरियल भी लगा दिया जिससे कि काम चल जाए. फाइनली गॉट ओवर. गया बॉस के पास और बोला सर चाबी. मैं बोला थैंक यू वेरी मच और चाबी उसको वापस दी और बोला ये आपका फेयरवेल गिफ्ट है मेरी तरफ से, पार्टिंग गिफ्ट फ्रॉम माय साइड, क्योंकि आपने इतने साल मेरे साथ काम किया, इतना अच्छा काम किया, तो दिस इज फ्रॉम माय साइड. अब उस टाइम कारपेंटर वाज सो सैड, ही फेल्ट गिल्ट और उसको काफी पछतावा हुआ. क्या रीजन था? व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन? He can do better because हाँ उसने अपनी मतलब कैसे काम चोरी की, like he is not doing his stuff. उसने अपना बेस्ट नहीं किया बिकॉज उसको नहीं पता था कि दिस इज गोइंग टू कम बैक टू हिम. मोरल ऑफ द स्टोरी इज व्हाइल यू आर वर्किंग इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, एवरी एम्प्लॉय वांट्स मोर, ईच ऑफ अस वांट्स मोर सैलरी, मोर इनकम. बट द क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क अवरसेल्फ इज कि जो हमको चाहिए हम उसके लिए जितना करना चाहिए उतना कर रहे हैं या नहीं. कहीं ना कहीं यही बात लौट के आती है बिकॉज मेनी टाइम्स वी सी पीपल आर ग्रोइंग, पीपल आर मूविंग फॉरवर्ड एंड हमें लगता है कि वी आर अंडरपेड, हमारी इतनी ग्रोथ नहीं हो रही जितनी की होनी चाहिए. मेनी टाइम्स हमको नहीं पता होता कि व्हाट इज गोइंग टू कम बैक टू अस, और जब काम मिलता है तो उसको हम उतनी शिद्दत के साथ, उतनी क्या बोलते हैं, मेहनत के साथ नहीं करते हैं जिससे कि वो आउटपुट आए जो हम ले रहे हैं. तो कहने का मतलब ये कि अगर एक लाइन में पूछेंगे व्हाट इज सजेस्ट इज इफ यू वांट मोर you have to give more. Without giving more, forget that you are going to give more. And it is not only for sales में, क्योंकि sales में क्या होता है वो directly दिख जाता है, बहुत ज्यादा numeric driven होता है. But whichever function you are representing, this is something which you need to keep in mind, right? Now, there are certain myths when it comes to career growth. Okay. Career success is a function of luck. आता है ना, हम किसी को देखते हैं कि इसकी तो ग्रोथ अच्छी हुई, इसका तो लक बहुत अच्छा है, हमारा तो लक खराब है, बहुत मेहनत करते हैं, कुछ होता ही नहीं. दूसरा इनबॉर्न टैलेंट. IIM ग्रेजुएट है, IIT ग्रेजुएट है, किसी अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से है, क्या है, टैलेंट है, होता है कि नहीं? यस और नो? यस और नो? कृपया एनर्जी बनाए रखिए, नहीं तो सो जाएंगे आप. दूसरा, तीसरा क्या आता है? कंपनी. यानी कि कंपनी अच्छी नहीं कर रही है, कंपनी में जो है एम्प्लॉय का ध्यान नहीं रखा जाता, दैट्स व्हाई हमारा करियर ग्रो नहीं कर रहा. व्हाट आई एम सेइंग कि इंडिविजुअली अगर हम अपनी बात देखें तो एक प्रोफेशनल के माइंड में क्या चलता है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉलिटिक्स. ये ऑफिस पॉलिटिक्स है बॉस, मुझे बटरिंग करना नहीं आती, आई कांट डू दैट, और सिंस मेरे को वो नहीं आती इसलिए मेरी ग्रोथ नहीं होती. कुछ कॉमन है इन सब में, कोई कॉमन लिंकेज दिख रहा है इसमें? करियर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, उसके रीजंस है, बट व्हाट इज द लिंकेज? ये सारे रीजंस या सारे एक्सक्यूजेस, ये सारे वो चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. टैलेंट इनबॉर्न रहता है, हमारा उसमें लिमिटेड स्कोप है. पॉलिटिक्स नहीं आती तो नहीं आती, कंपनी नहीं ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो व्हाट कैन वी डू? सो एसेंशियली व्हाट वी आर सेइंग कि हमारी करियर ग्रोथ इसलिए नहीं हो पा रही, क्यों? क्योंकि ये फैक्टर्स की वजह से जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं. यानी कि हमारी सक्सेस हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम बोल रहे हैं कि नहीं. यस और नो? दिस इज व्हाट वी आर सेइंग. तो व्हाट इट स्टेट्स इज लैक ऑफ
ओनरशिप, कि हम अपने करियर की ओनरशिप नहीं लेते. I take sessions for management colleges and all. हर किसी से आज आप बात करो कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है, तो वो बोलेगा या तो मुझे सीईओ बनना है किसी कंपनी का या फाउंडर बनना है. अल्टीमेट एम सबका वही है. Now what we tell them कि पहले किसी कंपनी या का सीईओ बनने से पहले, अपनी फर्म स्टार्ट करने से पहले, first you have to take control of yourself, your career. So you have to manage your career like a CEO, and a CEO has to take ownership of their actions. So these are the myths. Actual चीज क्या है कि हम जिस भी लेवल पे है करियर में या लाइफ में, वो हमारे पास्ट कर्म की वजह से है. whatever we have done in our past. तो अगर हमें अपना फ्यूचर सुधारना है, so we have to work today so that it is going to impact what we are going to get in the future. If you continue doing same thing, you continue getting same kind of output or results. It all starts with us and ends with us. Is it clear? Yes. Clear hai? Great. So this is a famous quote by Zig Ziglar. So Zig Ziglar is an American author, trainer, motivational speaker. उनकी एक सिंपल फिलोसफी की थी, and that's what I said कि अगर आपको अपने लिए ज्यादा चाहिए, what you have to ensure is कि you are helping enough people to get what they want. If you don't help enough people to get what they want, you are not going to get what you need for yourself. So shift करना है focus. What am I getting to what am I enabling others to get? मैं दूसरों को क्या लेने में मदद कर रहा हूँ. Clear है? So with this we come to the topic for today. So अभी तक what I was trying to do is setting the context, because for you it is also important to understand कि जो सीखना है, क्यों सीखना है, what is the relevance that it holds for you. To that extent, is it clear? Yes or no? Yes. What are customer service etiquettes? Let's look at. So customer service etiquettes is a combination or a set of attitudes. सबसे पहला है आपका क्या attitude है. If your attitude is good, that's the starting point. If attitude is bad, that's also the starting point. So your attitude is something that guides your behavior. Okay. अगर attitude सही नहीं है, तो आपका behavior भी reflecting that thing on. And the practice is that. So it's a combination of attitude, behaviors, and practices that follow, and these are the things that guide our interactions with whom? Customers. Between customers and customer representative. And when I'm saying customer service representative, CSR team is not, it's not limited to them. Any person who's working in an organization is directly or indirectly working for whom? Customers. So even a person at the back end who may not be facing the customer directly is responsible for customer service etiquettes. He or she must know how to serve the customer. Now, what are the benefits? Now, again, the benefits for you if you are good into customer service etiquettes. It leads to better customer experience, positive customer experience होता है. Now, this leads to trust. कस्टमर को एक बार आपने अच्छा सर्व किया, ट्रस्ट डेवलप होता है. ट्रस्ट लीड्स टू बेटर कस्टमर रिलेशनशिप, रिपीट कस्टमर्स, स्पेशली इन द बिजनेस लाइक दिस. यू आर, एक इन्वेस्टर को अगर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया, दे आर एबल टू गेट रिटर्न. नेक्स्ट टाइम यू लॉन्च द प्रोजेक्ट, दे आर द फर्स्ट वंस टू बुक द यूनिट्स. रिपीट बिजनेस लीड्स टू ब्रांड रेपुटेशन. ब्रांड रेपुटेशन ऑफ होम? Organization का तो है, but if you are the face who is representing the organization, it builds your brand as well. How many of you are here from sales? कितने कोई? तो sales में है, सब experience है, तो you know when you move from one organization to another, यही brand equity आपके काम में आती है. Leads to job satisfaction. When you are getting more business, your customers are happy, you are able to source more business, more revenue for your company. You get satisfied, and this leads to what? Career growth. So what's essential to understand? It starts from here. So the focus on positive customer experience is very essential. Now, while it is good, सबको हमको पता है, re-emphasize भी हो गया एक बार. Let's look at some of the challenges. What are the possible challenges that most of the people face while trying to serve the customer? So what could be the first challenge?
कम्युनिकेशन बैरियर. कम्युनिकेशन बैरियर में क्या हो सकता है? वेरियस टाइप ऑफ बैरियर. लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, एज बैरियर हो सकता है, साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है. You are not able to understand what is customer requiring and then you are just communicating. Few months back, एक instance हुआ मेरे साथ. It was 8 a.m. in the morning and I was busy and I receive a call. This gentleman calls me up and says, I am calling from so and so company और हमारी यहाँ प्रॉपर्टी है, वहाँ प्रॉपर्टी है, हमारे इतने प्रोजेक्ट हैं. मैंने 2-3 मिनट उसको सुना because I am also from sales background in my earlier avatar, तो थोड़ा सा वो रहता है, कनेक्ट रहता है और समझ में आता है कि प्रेशर है. तभी बेचारा 8 बजे फोन कर रहा है. तो 3 मिनट सुना मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपकी बहुत प्रॉपर्टी है, बट हाउ आई कैन हेल्प यू इन दैट. ही सेड, आर यू सर लुकिंग फॉर एनी इन्वेस्टमेंट? मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, आपकी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है. जो क्वेश्चन आपको पहले पूछना चाहिए था वो आपसे मेरे से लास्ट में पूछ रहे हो. आपने अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर दी एंड मैं भी अभी तक इरिटेट हो चुका हूं. अगर ये मेरे से पहले पूछ लेते तो मैं आपको शायद कुछ और टाइम पे कनेक्ट करने के लिए बोल देता. So what happened here? He was communicating from his point of view because I have to get more orders. मुझे ज्यादा leads को convert करना है, prospecting करनी है from that point of view. But from my point of view, I had some other priorities. Difficult customers. There are many occasions when customer gets very demanding. Easy नहीं होता है, चाहे आप जो भी दे दो. Customer क्या बोलता है? दिल मांगे more. You can never satisfy. High call volumes. तो एक होता है सिचुएशन जो मैंने बताया जहां आप आउटबाउंड कॉल कर रहे हो. एक बार कस्टमर जब अंदर आ गया तो फिर कस्टमर ज्यादा फोन करता है एंड समटाइम्स इट गेट्स डिफिकल्ट टू हैंडल कॉल वॉल्यूम्स. टाइम कंस्ट्रेंट्स, हाउ टू सर्व सो मेनी पीपल, टेक केयर ऑफ सो मेनी थिंग्स, एंड देन ऑफ कोर्स इवॉल्विंग कस्टमर expectation. So these are some of the common challenges that we face in customer service while trying to serve the customer. Clear till now? So now let's look at some of the skills that help us in overcoming this challenge. Number one is effective communication. Not only about customer service. Owing to my experience of dealing with people from diverse demography, geography, strata, age group, I can easily tell you, दुनिया की 90% प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की वजह से. चाहे वो घर में हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो, ऑफिस के अंदर सबऑर्डिनेट या कलीग्स के साथ आपका हो, या इवन नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी, इट्स गोइंग टू कम्युनिकेशन. सो दिस इज द नंबर वन फैक्टर, फॉलोड बाय प्रोफेशनलिज्म, एम्पैथी एंड रेस्पेक्ट. Now today we are going to cover effective communication. Okay. Owing to the limited time, this is what we are going to talk about. This is something which is most crucial. So what we are going to do is covering this. Now, when we say communication, what comes to your mind? Any thoughts? क्या होता है communication? What's your understanding? Okay, listen to one other person. Any other thing? Way of dealing, okay, that's one way of dealing. Listening to someone else, or कुछ understanding the need before communicating, okay. चलो एक चीज अच्छी है, किसी ने इंग्लिश लैंग्वेज को कम्युनिकेशन नहीं बोला. Many a times I get requests from people कि सर मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है. तो I ask them what is not good in your communication. सर हम इंग्लिश नहीं बोल पाते. I said English is a language, communication is altogether a different subject. So that clarity is there, which is good. Now, all of you shared bits and parts correcting. However, communication essentially is a process of exchanging your thoughts, ideas with others. Okay, so it's essentially a process. Jisme now it could be you will be talking and communicating. You may not be talking and communicating. That's also possible. So this is a symbolic representation. What happens? You send a message by encoding into some language. Language could be a verbal spoken language, or it could be sign language also. That message is decoded by the receiver, and then of course the feedback is sent. Okay. So till the time these steps are not complete, communication cycle is not complete. So where the error happens usually, sometimes the encoding is not correct,
the way you are communicating, you are yourself thinking कि मैं सही से articulate चीजों को नहीं कर पाया. That could be a problem area. आपने अपनी तरह से कर लिया but सामने वाला decode नहीं कर पाया. That could be a problem area. And third could be ये feedback नहीं है. So for example, I am trying to communicate to the best of my ability, but अगर मुझे सामने से feedback नहीं आया, तो I may not be able to understand आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. So this is also important. तो इसको rest of the session में ध्यान रखिएगा. For effective communication, I would require feedback from your end continuously. Clear? So it's an act of exchanging thoughts, ideas, views, and any other information with others, verbally or non-verbally. To that extent, what's the importance of communication? According to you, what's the importance? Any thoughts? It is said that आप जितना mind को use करते हो उतना sharp होता है. Better to understand the demand or better to understand what the customer wants. Importance of communication. कि communication क्यों जरूरी है? इससे क्या फायदे? समझो benefit या क्यों महत्वपूर्ण है? You will express yourself. Good expression, yes, you will be able to express yourself. Yes. Good relation. What else? It's a process of exchanging. All the queries like कोई भी उनकी query हो. Query resolution. और अगर इसको थोड़ा सा और रिफाइन करो तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. जब हमारी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है किसी के साथ, कम्युनिकेशन जब तक सही नहीं होता वो नहीं होता. वो बोलते हैं ना कि let's sit across the table and then sort it out. So of course conflict resolution, query resolution. So there are many ways in which help. So it helps in building better relationships. Personal life में है, professional life में है, trust develop होता है, enhance understanding and cooperation, resolution of conflict. So all these spaces, communication is coming into the play. That's why it is important for you. Okay. Now this is important. So let's look at it. Normally जब हम communication की बात करते हैं, तो we are too much focused on spoken words कि हम क्या बात कर रहे हैं, कितना अच्छी तरह बात कर रहे हैं. Now this was a study which was done in the year 1967. So Albert Mehrabian was a psychologist. तो इन्होंने 2 studies की थी और इन studies का जो outcome निकल के आया कि जो हमारा communication है, it comprises of 3 main components. One is verbal, spoken जो रहता है. दूसरा होता है हमारा facial या expressions of body language और तीसरा होता है tonality कि हम किस टोन में बात कर रहे हैं. तो इन्होंने वो बोला कि हमारा 55% जो है ना बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है, टोन ऑफ वॉइस जो है वो 38% है और 7% इज दी मतलब आपके मुंह खोलने से पहले ही बाकी काम हो जाता है. As soon as you go in front of somebody, the way you are representing yourself is more important than what you actually speak up. और कई बार वो इतना ज्यादा डैमेज हो जाता है कि बाद में डैमेज करना कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है. तो व्हाट इट स्टेट्स की टोटल लाइकेबिलिटी फैक्टर, ये मतलब एक कस्टमर आपको लाइक करेगा या नहीं करेगा, या कोई सामने वाला इंडिविजुअल आपको पसंद करेगा कि नहीं करेगा, उसका ब्रेकअप ये है. एंड प्रॉब्लम क्या है, मोस्टली लोगों का फोकस सबसे ज्यादा यहाँ रहता है कि मैं कितने अच्छे लैंग्वेज बोल पाऊं या वर्ड्स यूज कर पाऊं. दैट इज वेयर वी आर फोकस्ड अपॉन एंड दिस पार्ट इज इग्नोर्ड. इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. 11 साल पहले व्हेन आई वाज इनटू जॉब, सो आई वाज वर्किंग विद द बैंक, आई वाज इनटू अ रीजनल हेड काइंड ऑफ अ पोजीशन. तो मैं अपनी पहली गाड़ी ले रहा था, तो मुझे लोन लेना. तो उस टाइम पे मैंने चेक किया सस्ता लोन कहाँ मिलता है या कौन से अच्छे टर्म्स मिलता है. तो एक बैंक, सरकारी बैंक थी, उसका काफी अच्छे टर्म्स थे, इंटरेस्ट थे. तो मैंने क्या किया, मैंने उनको बुलाया मिलने के लिए, बिकॉज आई वाज हैंडिंग अ टीम माई सेल्फ. तो मेरे बच्चे भी जाते थे लोन देने के लिए. सो आई यूज द सेम प्रोसेस. अभी बैंक के रिप्रेजेंटेटिव मेरे पास आए, तो एक तो पहला तो देखते ही उनको मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि मैं प्राइवेट बैंक में काम करता था, ऑफ कोर्स सरकारी बैंक थे. तो दिस जेंटलमैन केम टू मी, पैंट पहनी हुई थी, एक सादी शर्ट थी, बाहर निकाली हुई थी, स्लीव्स यहाँ तक फोल्ड थी दोनों. एंड देन वी स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग. तो ऑफ कोर्स ही माइट बी यूज्ड टू गेट वर्किंग विद पीपल जहां इसको खाली ऑर्डर लेने पड़ते थे. तो मैंने उनसे इंक्वायरी की, सब कुछ किया. देन आई सेड ठीक है, गिव मी सम टाइम, मैं आपको बुलाता हूं एप्लीकेशन करने के लिए इन अ कपल ऑफ डेज. नाउ दिस जेंटलमैन टेल्स मी, तो आज आप एप्लीकेशन नहीं करने वाले? मैं कहा नहीं. तो फिर मेरा समय बर्बाद क्यों किया? एंड आई वाज ज़ैप्ड. मैंने कहा नो सेल्स पर्सन टॉक्स लाइक दिस. मैंने कहा मेरा तो
आइडिया ये था कि आप पहले समझें, then of course I will apply in 1 or 2 days. So then next time जब आपको अप्लाई करना हो ना, आप ब्रांच में आ जाइएगा and you can apply there. Now अगर इसमें आप देखो तो वर्ड जो उसने यूज किए वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन, बट द वे ऑफ हिज कम्युनिकेशन, द वे ही वाज ड्रेस्ड अप, द वे ही रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ वाज वेरी वेरी नेगेटिव. उसका मेरे ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा एंड दीज इंपैक्ट्स लास्ट लॉन्ग टिल डेट. इट्स द वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक ऑफ इंडिया. मेरा उनके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं. एक बार उन्होंने कोई कार्ड वार्ड मुझे भेजा था, सेम डे आई डिस्ट्रॉयड एंड थ्रू इट अवे. तो मेरा एक बोलते हैं नेगेटिव इंप्रेशन बोलते हैं, I carry till date. And the fact that I am quoting this example from something which happened in 2011, so imprints last long. Okay, and here it was a combination of these two. ये कम था, but it was more on the tone that I was spoken to and the way he was representing himself that made the impact. So those of you who are already into sales, customer facing roles and maybe customer representative roles, be mindful of that. कई बार होता क्या है, and I can also tell you from my example. When I started my career, बैंक में जब फर्स्ट जॉब लगा तो before that I was working into Middle East. तो मैं वहाँ काम करके आया था, so थोड़ा सा well groomed था. Now when I landed up, तो I approached my work from that point of view कि आपको अच्छे से ड्रेस अप वगैरह रहना चाहिए. Now when I went, I saw in my branch जो बाकी सेल्स वाले थे, especially if you people see in loans, they are not really well dressed. वो ठीक है, चलता है वाला एटीट्यूड होता है. So many times what happens is कि you get used to how others are doing. जब सब कर रहे हैं तो हम भी वैसा ही कर लेते हैं. That is wrong for two reasons. एक तो even if everyone is doing the same thing, that may not be the right thing to do. Second, if you become like everyone, how will you stand out? How will you stand out? How will you differentiate yourself? तो आज की डेट में एक टर्म बहुत यूज होता है, what's your unfair advantage? कि आपका unfair advantage क्या है, मतलब जो आपको कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता. So idea is, the point that I'm trying to make is, be mindful even if the people around you are using wrong kind of tonality, wrong kind of language, wrong kind of representation to the customer or maybe generally with the people. You don't necessarily need to do that. Individuals using words. That is what we do. Now, it is the most common way of communication. क्योंकि हम लोग को समझ में ही ज्यादा जब भी बात करते हैं कम्युनिकेशन की तो वर्बल ही आता है, और उसमें अगर आपको ठीक से नहीं आता, सिंस मोस्टली सबका फोकस वही है, हालांकि इम्पैक्ट उसका कम ही है, then it makes things ineffective. So now let's look at this. So these are three important factors for effective communication when it comes to verbal: accuracy, clarity, and correctness. So this is what is very important. And again it boils down to the same fact कि जो हम बोल रहे हैं वो हमको तो सही लग रहा है, सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं, वो ज्यादा जरूरी है. तो putting yourself into the shoes of your audience is very very important. Okay. Oral and written, these are the two kind of verbal communication that we use on most occasions. So let's look at oral. Speech, face-to-face interaction, telephone interaction, presentation, all these are kind of your oral. Now oral के अंदर the things that you need to keep in mind. Volume. स्टार्ट करने से पहले हमने 10-15 मिनट स्पेंड किए कि कितना साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा, सुनाई देगा कि नहीं देगा, ज्यादा तो नहीं हो रहा, so that it is comfortably audible. ज्यादा तेज होने से भी दिक्कत है और कम होने से भी दिक्कत है. रेट ऑफ स्पीच, क्या आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है जो मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ? नहीं आएगा ना, इतनी स्पीड से बोलें, और एक इतनी स्पीड से बोलूं ओके एवरीवन क्लियर, थोड़ी देर में सब सो जाओ. So that is also necessary to understand कि क्या आपको रेट मेंटेन करके चलना है. Clarity, choice of words. Choice of words का मतलब ऐसे वर्ड्स में यूज कर दो जो कॉमन पार्लेंस में चलते ही नहीं. शशि थरूर बन जाओ, तो ऐसी लैंग्वेज बोले जो आपको समझ में ही नहीं है. वो समझ नहीं है मुझे, उससे बड़ा मेरा ईगो मसाज हो जाएगा कि आपसे मैंने ऐसी डिलीवरी दी कि कोई समझ ही नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास ज्ञान ज्यादा है. But that's not the purpose of communication. And of course tone, polite, confident, that's what's important. तो polite भी होना है, confident भी होना है. अगर नहीं होगा
तो कस्टमर पे या जिसके साथ भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो इम्पैक्ट नहीं होता। कई बार लोग धीरे धीरे बात करते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट डिस्प्ले होता है, कई बार इतने एग्रेसिव होते हैं कि सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते। So we don't have to do. Now basic etiquette, this is important. So do's क्या है? Speak at good volume. Fillers, everybody knows क्या होते हैं fillers? जो जानते हो तो बता दो, मैं नहीं जानता। Okay. Fillers मतलब ये हो गया where we fall we face lack of words, जहाँ हमको समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, तो फिर उस टाइम पे हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत सबके साथ होता है, अगर बहुत ज्यादा होता है तो आप डिसएंगेज हो जाते हो, लाइव में फिर भी चल जाता है, बट अगर रिकॉर्डेड सेशंस एंड ऑल है ना, तो उसमें तो 2 मिनट में आप एग्जिट। कंट्रोल योर रेट ऑफ स्पीच, ऑलरेडी डिस्कस, पॉज लेना चाहिए, स्पीक पोलाइटली, courteous words, check your choice of words, correct grammar. Now grammar हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो उसका सम्मान करो और उसको ही अच्छे से यूज करो। Now and seek clarity. अगर किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए। कई बार हम नहीं पूछते, क्या करते हैं, assumptions लेते हैं, and that is what causes trouble. Don't mumble. Mumble मतलब हिंदी में बोलते हैं बुदबुदाना, तो इतना धीरे धीरे बोलना कि आप ही को सुनाई दे रहा है, सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, बहुत फास्ट बोला, इतनी फास्ट की ट्रेनिंग निकल रही। लॉन्ग पॉजेस या वर्ड्स ही नहीं मिल रहे हैं तो क्या करना चाहिए इसको, लॉन्ग पॉजेस को अवॉइड करने के लिए? हाउ कैन यू अवॉइड इट? बोलिए ना, हमारा माँ बता रहे प्रिपरेशन थोड़ी बेटर करनी पड़ेगी कि अगर हमारे पास वर्ड्स की कमी पड़ जाती है तो हमें वोकैबुलरी बढ़ानी पड़ेगी, जिस भी लैंग्वेज हमारे पास कमी तभी होती है आउटपुट्स की, जब हमारा इनपुट कम होता है। तो आप इनपुट बढ़ाइए, उसके बढ़ाने के कई तरीके हैं, आप ज्यादा पढ़ सकते हैं, ज्यादा सुन सकते हैं, ज्यादा लोगों के साथ बात कर सकते हैं अपने रेलेवेंट टॉपिक से लेके, सो दैट यू डोंट टेक लॉन्ग पॉजेस। स्लैंग्स पता है क्या होता है? अभद्र भाषा, ठीक है ना, कई बार हम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं और वो हमारी ऑफिशियल कम्युनिकेशन में भी कई बार आ जाती है। यंगस्टर्स के साथ ज्यादा होता है आजकल। वो कौन से होते हैं? उत्कर्ष कौन से यूज करते हो? ROFL, LOL क्या होता है? ये स्लैंग्स है ना। ROFL क्या होता है? रोलिंग ऑन द फ्लोर, लाफिंग, रोलिंग ऑन द फ्लोर, लाफिंग। So ROFL, LOL, laugh out loudly. So all these are slangs. So these should be avoided. Jargons. Jargons are technical terms specific to the domain that you are doing. मतलब जिस डोमेन में आप ऑपरेट करते हो उसके हैं। तो जब मैं शुरू में स्टार्ट किया ना बैंक में करियर, तो पहले दिन गया, मेरे से लोग स्लैंग में बातें कर रहे हैं, LTV। अब मुझे तो पता नहीं है LTV क्या होता है, फिर कोई बोल रहा है PDV। अब PDV हमको नहीं पता, उसके भी 2-3 अलग अलग टर्म्स निकलते हैं। तो LTV क्या होता है मालूम है? रियल एस्टेट में आप लोग हैं सब सेल परचेज में डील करते हैं, क्या होता है LTV? बैंक वालों में डील होता है, नहीं होता? लोन पार्ट आप लोग नहीं देखते हो, अच्छा, तो जो लोन पार्ट देखते हो उनको पता होगा। LTV होता है लोन टू वैल्यू, प्रॉपर्टी का कितना परसेंटेज आपको लोन मिलेगा, दैट इज नोन एज LTV। तो ये जो है इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं, ऐसे मेडिसिन में भी होते हैं, इंजीनियरिंग में भी होते हैं। तो दीस शुड नॉट बी यूज्ड अनलेस यू आर टॉकिंग टू द पीपल हु आर फ्रॉम द सेम डोमेन। आपके रियल एस्टेट में भी होते हैं, बट आई थिंक व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद द रियल एस्टेट हाँ, तब है। अगर कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो एट दैट टाइम समटाइम वी हैव टू यूज दिस थिंग्स, नॉट नेसेसरी। मतलब स्क्वायर फीट में बात करना है या किसी को स्क्वायर मीटर में समझाना या किसी से इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करना विद क्लाइंट एंड ऑल, आस्क हिम इफ यू अंडरस्टैंड। बट आज की डेट में अगर हम वैसे बात करें, क्लाइंट्स आर वेरी मच अवेयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स। देखिए, जहां क्लाइंट आज की डेट में रिसर्च करके आते हैं, they can tell us better, जैसे कहते हैं टर्मिनोलॉजी, वो हमें ज्यादा बेटर बता सकते हैं कि क्या चीज है। देखो ये जो आपने बताया स्क्वायर फीट एंड ऑल, दीस आर
नो लॉन्गर जार्गन्स। ये जो घर खरीदने जा रहा है उसको मालूम है कि मेजरमेंट का एक यूनिट है, तो दे आर अवेयर। व्हाट हैपेंस इज कि वो एक बस हाँ ये नॉर्मली इस तरीके से होता है जैसे हम ईपीवी बात करते हैं, ईपीवी 1 ईपीवी 2 हमारे लिए पता है कि ये क्या है, लेकिन वो क्लाइंट्स को भी पता है कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम। मैं बताता हूँ ना, अभी जैसे कुछ टाइम पहले मैंने लास्ट ईयर एक फ्लैट खरीदा, तो ठीक है बाकी तो हमने को सब पता है। अब वहां जब अदर चार्जेस होता है उसमें उन्होंने कुछ कंपोनेंट्स डाले हुए थे और उसमें सारी शॉर्ट फॉर्म्स थी। अब वो बोले, जिसने मुझे सेल किया वो बोला सर ये इतना इतना इसका, मैंने कहा ठीक है मैं समझ गया मुझे देना, बट मुझे इसको ब्रेकअप तो बताओ, व्हाट इज इट, व्हाट आई एम पेइंग फॉर। तो वो टेक्निकल टर्म्स कई बार लोगों को नहीं पता होता है। नाउ मोस्टली ठीक है यूनिट मेजरमेंट एंड अदर थिंग्स आर नोन टू पीपल एंड वो आजकल प्रिपेयर होके आते हैं। कई बार क्या होता है, द इंडस्ट्री वेयर आई वर्कड अपॉन, वहां पे लोगों को नहीं पता होता था, और वहां के बोलते थे सर आपको इतना लोन मिलेगा, बहुत सारे। सो specific to your industry, try to put yourself into the shoes of the customer and then try to communicate in the language that they understand. कई बार ये हमसे नहीं होता, और इसका एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट हुआ था। तो while I was working for an organization, एक बार हम लोगों का टाउन हॉल हो रहा था, तो हमारे सीईओ जो थे कंपनी के, he shared this incident। उन्होंने बोला कुछ दिन पहले एक कस्टमर की कंप्लेन आई हमारे कस्टमर से इनको, एंड इट वाज एस्केलेटेड टू सीईओ। व्हाई इट वाज एस्केलेटेड कि वो पर्सन ने लोन के लिए अप्लाई किया था, अफोर्डेबल सेगमेंट का कस्टमर था, एंड व्हेन ही अप्लाइड तो एग्जीक्यूटिव को बुलाया, उसको डॉक्यूमेंट दिए। एग्जीक्यूटिव सेड यस सर एवरीथिंग इज डन, अब कल जो है आपकी, कल नहीं एक दो दिन के अंदर एफआई हो जाएगी, और उसको बताया नहीं कि ये होता क्या। नाउ कस्टमर गॉट वरिड, उसने बोला पता नहीं ये क्या, मतलब व्हाट मिस्टेक आई हैव डन, इट वाज हिज फर्स्ट होम। नाउ एफआई इन बैंकिंग पार्लेंस स्टैंड्स फॉर फील्ड इन्वेस्टिगेशन, ये मतलब कस्टमर का रेजिडेंस या ऑफिस का वेरिफिकेशन कर। एक नॉर्मल पर्सन ने उसको सोचा कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर जो होती है, एंड ही गॉट वरिड, और उसने ये मेल भेज दी सीईओ को, एमडी को एस्केलेट कर दी कि मैंने एक सिंपल लोन के लिए अप्लाई किया है, व्हाई एन एफआईआर और समथिंग ऑफ दिस काइंड बी डन। तो रिपरकशंस आर फार रीचिंग। क्लियर? साउंड रूट व्हिच इज क्लियर। नाउ how many of you use telephones for communication? Almost everyone. So these are some of the telephone etiquettes that you should be taking care of. Be consistent. Consistent मतलब flow में आप एक बात कीजिए, that is one. Now these are the things which are applicable for landline also, और आजकल तो मोबाइल पे mostly communication आता है, तो there as well. Never interrupt. कई बार हम या तो अपने भेजने की जल्दी में या सॉल्यूशन देने की जल्दी में we have this tendency of interrupting people midway. Stay away from it, because अगर वो वैसा नहीं करोगे it irritates. For example, my personal weakness is कि I'm a good listener, but when I'm talking to somebody cuts me, that puts me off. So there are many people who have this habit, काटने की, वो सुनते ही नहीं आपकी बात, they have to communicate what they are thinking. Hold button, of course this is applicable if you are in sitting among people, और अगर आपको कुछ internal discussion करना है तो you should know how to hold your phone instead of letting other person listen to what you are communicating with the colleague. Transferring the call, this is for landlines. Customer inform, smile while talking to customer. Difficult है, you are not facing someone, कैसे smile करोगे? but इससे फायदा क्या होता है? टोन आपकी अच्छी हो जाती है। जब आप कूल रहते हो, काम रहते हो, इंटरनली हैप्पी रहते हो, तो ऑफ कोर्स है आपकी, तो स्माइल करने से एक तो आप थोड़ा सा बेटर फील करते हो, क्योंकि आपकी फिजियोलॉजी आपकी साइकोलॉजी को भी डायरेक्ट करती है। तो आप जब स्माइल करते हो, भले ही बहुत गुस्सा है, बहुत दुखी हो, फिर भी स्माइल करते हो, तो इट हेल्प्स यू इन इंप्रूविंग योर मेंटल स्टेट, और ऑफ कोर्स है कस्टमर के पास आपकी टोन अच्छी जाती है। कैसे एंग्री और एब्यूसिव को हैंडल करना है, कुछ है गाइडलाइंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली होती है, एसओपीज होते हैं कि अगर एंग्री या एब्यूसिव आ जाए कस्टमर को लाइन पे तो उसको कैसे डील करना है। नहीं है तो देन लर्न फ्रॉम समबडी सीनियर, अपनी तरफ से मत चलाना, बिकॉज दिस लीड्स टू सम टाइम लीगल रेमिफिकेशंस हो जाते हैं, फिर लीगल इश्यूज भी हो जाते हैं। 3 कॉल में फोन उठा लेना चाहिए यूजुअली, दैट्स द रिकमेंडेड कि 3 घंटे में आप उठा लीजिए, उठा सकते हैं। Background noise avoid कीजिए। Now take questions and notes. And now this is more relevant for people who are handling customer queries
or communicating. So it is recommended that those who are into customer facing role always keep a small notebook or something where you can take notes. Digital notes ले सकते हैं, well and good. But mostly होता है कि if you have only one phone, या तो बात करोगे या notes ले. Clear? Now let's look at some of the tips. जब भी बात कर रहे हो आप टेलीफोन पे, पहला तो खुद को आइडेंटिफाई करना जरूरी है. मेरे पास डेली कम से कम 2-3 फालतू के कॉल जरूर होते हैं, जो स्पैम कॉल्स होते हैं, और उसमें कई बार सामने वाला अपने को आइडेंटिफाई करने से पहले मुझे आइडेंटिफाई करवाता है कि आप सो एंड सो बोल रहे हैं. क्यों? कहीं से डेटा मिलता है उनको, तो दे कॉल अप, बट दे नेवर आइडेंटिफाई देमसेल्फ. सीक परमिशन बिफोर पुटिंग कॉल ऑन होल्ड. अगर होल्ड पे डालना है तो पहले परमिशन लो. जो कस्टमर केयर सेंटर्स होते हैं वहां पे आप लोगों ने देखा होगा, व्हेन यू कॉल दे सीक योर परमिशन. एंड नाउअडेज तो दे आर गोइंग वन स्टेप अहेड. आजकल वो फोन काटते नहीं हैं, नोटिस किया है? जब आपका कंप्लीट हो गया ना, तो वो आपको बोलते हैं कि इफ यू आर सेटिस्फाइड सर मैडम काइंडली डिस्कनेक्ट मी. दे डोंट डिस्कनेक्ट. सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज़ इट कम्स एज डिसकर्टियस. अगर वो आपका फोन काटते हैं तो बिकॉज़ नेवर नो, आपको कुछ और बोलना रहता हो. इफ यू आर ऑक्यूपाइड कॉल बैक इंस्टेड ऑफ होल्डिंग फॉर लॉन्ग. अगर बिजी हो तो होल्ड मत कराओ, कॉल बैक कर लो, टेल देम, एंड पीपल अप्रिशिएट इट. डू नॉट लेट फोन रिंग मोर देन थ्राइस. वी ऑलरेडी डिस्कस. सामने वाला बोल रहा हो तो उसको मत रोको, लेट देम कंप्लीट. कई बार क्या होता है कि अगर वो डील किया किसी एंग्री कस्टमर से एवरीडे, कई बार आप खाली उनको सुन लो तो ही आपका प्रॉब्लम को सॉल्व हो. सो डोंट डिस्टर्ब, नेवर एंगेज इन आर्गुमेंट. कई बार काम इतना इंपॉर्टेंट होता है कि हम खाते खाते भी फोन पे बात करते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इरिटेटिंग थिंग व्हिच यू कैन डू टू एनीवन. So it has to be completely avoided. Call back कर लो, बोल दो कि I am having lunch and all that. It will not, unless it's an emergency, people do wait. Ask for best time to call and let the caller hang up first. So this is what I was talking about. जिसने call किया है पहले उसको hang up कर देंगे. So these are some of the simple and effective tips that help you in telephone and telecommunication. आजकल mostly communication टेलीफोन पे ज्यादा होता है. सो स्टिकिंग टू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोगों की आउटबाउंड टीम है क्या जो कस्टमर्स को कॉल करती है फॉर ऑफरिंग दी प्रॉपर्टीज एंड अदर थिंग? है आपके पास यहाँ पे आउटबाउंड टीम कोई? तो वो तो इनबाउंड तो क्वेरीज आप एंटरटेन करते हो. एक होता है ना कि ओके, बट फॉर से ऑफरिंग द प्रॉपर्टीज यू हैव एजेंट्स एंड वो सब है, तो फिर वो लोग करते होंगे रीचिंग आउट टू देयर डेटाबेस एंड कस्टमर, बिकॉज़ फॉर देम knowing this is very important, because bosses and senior management may not be aware that how much business they are losing just because of ineffective telephone communication. And I am talking from the personal experience कि आपके पास किस तरीके से सामने वाला बात करता है ना, those first 10 seconds help in deciding whether how long the call is going to continue. Clear? Oral and telephone. So let's look at written. Written में there are many ways in which the communication is done. Today आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज होता है email. This is the most widely used kind of communication. So now we are going to see a 7C framework. Now this 7C framework helps you in effective communication, so orally as well as some written part of it. So these are the 7 C's. तो अगर समझ में आता है तो you can start writing it down. And if you are including these 7 C's in your communication, the communication will be much more effective, especially when it is about written communication. क्योंकि written में आपके पास टाइम ज्यादा रहता है for reviewing before sending the message. It is an important tool. So the 7 C's are clear, concise, concrete, correct, coherent, complete and courteous. Next look at one by one. तो clear का मतलब है कि जब आप communicate किसी के साथ कर रहे हो, तो it's very important to keep in mind कि आपका goal क्या है, purpose क्या है. So if you see at the beginning of this session, topic से आने से पहले I set the context कि goal क्या है, communication आपको क्यों चाहिए, या customer service etiquette क्यों चाहिए, because it is in your favor. It's not that कि खाली किसी और को ही मदद करने वाला है, it is going to help you also. So what exactly do you want to convey? Knowing that is important, get straight to the point and make sure it is easy to understand. क्योंकि अगर easy to understand नहीं होगा, then it would be problematic. Second is concise.
Now, what does concise means? कई बार क्या होता है कि sentences, especially in writing, हम लिखते हैं जैसे कि हम बोल रहे हैं. तो अगर इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो यू विल सी कि हमारे सेंटेंसेस बहुत लंबे लंबे बनते हैं, जिसमें बहुत सारे बीच में एंड भी आ जाएंगे और भी आ जाएंगे. दैट डिसएंगेजेस पीपल. सो इसीलिए आप राइटर्स को भी देखोगे जब वो लिखते हैं तो नॉर्मली इन टुडेज टाइम दे राइट शॉर्ट्स सो दैट एंगेजमेंट बना रहे एंड क्लियर है. और ऑफ कोर्स टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग, कीप इट सिंपल एंड मोर अपीलिंग टू होल्ड रीडर्स अटेंशन. तो गोल स्पेसिफाई कर लिया, सेंटेंसेस शॉर्ट रखे, कंसाइज लिखा, टू द पॉइंट रखा. नाउ तीसरा है कंक्रीट. कंक्रीट का मतलब ये है कि कई बार हम डाइग्रेस हो जाते हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, उसमें जो एक्चुअल बोलना है वो कहीं बीच में हो गया. एंड दैट इज अगेन इन राइटिंग आल्सो कि मेल भी जब भेज रहे हैं, एक स्टैंडर्ड मेल्स कई बार ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कस्टमर को जाता है, उसमें स्टार्टिंग में तो ना सब कुछ वो फ्लावरी और अननेसेसरी का कंटेंट होता है. देन यू कम डाउन इन समवेयर इन बिटवीन, यू विल बी एबल टू फाइंड कि एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं. और फिर एंड में देयर आर सो मेनी प्लेजेंटरीज कि अगर वो मेल का फॉर्मेट ही देखूं मैं एज ए रीडर तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये क्या पर्पस होगा इसका. कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जो बोलना है टू द पॉइंट रखो. आज की डेट में वैसे भी द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन दिस जनरेशन इज ओनली वन, अटेंशन. बड़े से बड़ी कंपनियां जो भी आपको दे रही हैं आपके अटेंशन लेने के लिए. ठीक है. तो देयर इज अ फेमस कोट बाय नेटफ्लिक्स का जो ओनर है, उससे किसी ने पूछा इंटरनेट स्पेस में इतनी कंपनी, इतनी कंटेंट, डोंट यू थिंक कि इट्स ऑलरेडी ओवर कॉम्पिटिटिव वेयर यू आर गेटिंग इट. ही सेड कि कंपटीशन हमारा एक दूसरे से है, देयर इज इनफ स्पेस. कंपटीशन हमारा खाली आपकी नींद से है, बिकॉज़ दैट इज द ओनली टाइम वेयर वी कांट लेट यू होप टू अस, जहां आप हमारे को नहीं देखते हो. सो अटेंशन ही इंपॉर्टेंट है. सो इफ यू कीप इट कंक्रीट, आप अटेंशन ले लेते हो. करेक्ट. तो दिस इज सिंपल. ग्रामर चेक करो, सेंटेंसेस चेक करो, पंक्चुएशन चेक करो कि all the facts that you are trying to communicate is correct or not coherent. So this is again what something कि अगर जो फर्स्ट लाइन है वो थर्ड लाइन के साथ कनेक्टेड है कि आपने स्टार्ट करना था अपने शहर के बारे में बताने से और आपने चालू कर दिया सोलर सिस्टम से, तो आते 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 वो कोहेरेंस कहीं ना कहीं हट जाता है. Anything missing, check the flow if it's logical or not. Then of course it's complete. Complete का मतलब सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है कि नहीं. सीटीए समझते हैं? सीटीए, कॉल टू एक्शन. सीटी इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर कॉल टू एक्शन. जब आपने कोई मैसेज कंप्लीट किया तो व्हाट इज इट दैट यू वांट द रीडर टू डू. खाली पढ़ के छोड़ दे या उसको कुछ रिस्पॉन्ड करना है या कुछ एक्शन लेना है, वो करना जरूरी है, स्पेसिफाई करना जरूरी है. कई बार ये पार्ट हम छोड़ देते हैं. तो आपने कस्टमर को लेटर भेज दिया कि हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इसके अंदर ये है ये है ये है फैसिलिटी. अब जब तक आप उसमें लिखोगे नहीं कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये पे करो, यू कैन बुक अ विजिट, या प्री बुकिंग में यू कैन बुक फ्लैट और व्हाटएवर, तब तक जरूरी नहीं कि हर आदमी खुद से समझे. सो कॉल टू एक्शन इज इंपॉर्टेंट. आर यू लीविंग एनीथिंग टू इंटरप्रिटेशन? सो दिस इज व्हाट आई सेड कि वो अपने आप समझ जाएगा, नॉट नेसेसरली हैव यू एड्रेस्ड और साइंड ऑफ करेक्टली. नाम लिखा है कि नहीं लिखा. कई बार जेनरिक आईडी से मेल आती है और नीचे किसी का नाम ही नहीं है, एंड व्हेन समबडी इज ट्राइंग टू रिप्लाई होम टू एड्रेस, यू डोंट नो. जेनरिक आईडी नॉर्मली क्या होता है, एक टीम यूज करती है, देयर आर मल्टीपल पीपल यूजिंग दैट सेम ईमेल आईडी, तो उस केस में ये दिक्कत है. courteous as the word suggests, it's about tonality. जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो पोलाइटनेस है कि नहीं है, हम्बल हो कि नहीं, टोन क्या है, and use magic words if required. So these are the 7 C's which can help you in framing your communication, especially the written communication, because there you have more time. Now as you practice it in written communication, you will see कि वो आपके verbal में भी धीरे धीरे include होता जाएगा, वो आइसोलेशन में नहीं रहता. आप देखोगे जो आप लिखते हो वही आप मोस्टली बोलते हो, और जो बोलते हो वही लिखते हो. These are interconnected because ultimately कर क्या रहे हो, जो हमारे अंदर है, थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, उसको एक्सप्रेस करने का तरीका है. जहां ओरली बोलते हैं हम, वहां हमारी बातचीत हो गई, और जहां लिख रहे हैं तो इट इज पेनिंग इट डाउन. क्लियर है? ईमेल एटिकेट्स, ईमेल तो सब लोग यूज करते हैं. सो क्विकली आई विल कवर सम पॉइंट्स व्हिच आर एसेंशियल
अब इसमें से जो जरूरी है वो आप देखते जाओ। ईमेल का पहली बार चीज पर्पस ये है कि सामने वाला पढ़े, रिस्पॉन्ड करे, एक्शन ले। दिस इज द बेसिक प्रीमाइस। इसी के लिए यूज करते हैं? नहीं करते। बेसिक पर्पस वो है, बट होता काफी सारे डिफरेंट पर्पसेस के लिए। कई बार हम काफी सारे लोगों को सीसी भी मार्क कर देते हैं जिनका उसमें कोई लेना देना नहीं होता। व्हाई? टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ। मैंने अपना काम कर दिया, आप मारते। Yes or no? Practically यही होता है। Yes. This is what it happens. So this is a short form which you can recall, ECS BAPS. What it means कि ये fields आपको थोड़ा सा carefully देखनी है when you are sending a mail. Too clear है? जिसको आप मैसेज भेज रहे हो उसी को भेजिए। CC, BCC पता है? BCC यूज करनी चाहिए? कब करनी चाहिए? Exactly, उसी के लिए यूज होता है। आइडियली कर लेनी चाहिए। What it tantamount to? BCC यूज कर रहे हो तो उसका मतलब क्या होता है? हाँ, कस्टमर नहीं, एनी विच वेज कोई भी सेंडर है कि आप सामने वाले को ये जानने नहीं देना चाहते कि आपने किसी को मार्क किया। नॉर्मली उसी में ही यूज होती है जब आप किसी सीनियर या अथॉरिटी फिगर को मार्क कर रहे हो, बिकॉज आप उनको बताना चाहते हो कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विदाउट द अदर पर्सन टू नो। नाउ इन केस ऑफ कस्टमर्स आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड कि कस्टमर के केस में यू डोंट वांट टू पुट योर सीनियर्स इनटू लूप एंड अदर थिंग, बट इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए एज फार एज पॉसिबल दिस शुड नॉट बी यूज्ड। ओके, बिकॉज अगर सामने वाले को मालूम पड़ा जिसको आपने भेजा कि आपने मार्क किया है, कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिक्स, फिर वो भी हर किसी की बात करेगा। बेचारा जो आपका सीनियर पर्सन होगा वही अपना मेल बॉक्स क्लियर करता है और एक मिनट के बाद तो पढ़ना भी बंद कर देता है। सेम हैपेंस विद सीसी। अननेसेसरी की सीसी बहुत मार्क होती है बहुत लोगों को, एंड मोस्टली यूजर पढ़ते ही नहीं। सब्जेक्ट, बॉडी जो हो गया आपका मेन, अटैचमेंट, प्रूफ रीड एंड देन सेंड। प्रूफ रीड के लिए वी हैव सॉफ्टवेयर these days, सॉफ्टवेयर के थ्रू कर लेते हैं हम लोग चेक एंड देन यूज। तो कई बार कुछ छूट जाता है। ऑफ कोर्स आजकल तो आपका सिस्टम आपको रिमाइंडर दे देता है कि सब्जेक्ट इज नॉट फिट, लुक एट इट। पहले नहीं होता था, तो पहले बिना उसके पीछे। आजकल तो आई एम सेइंग कि सिस्टम्स हैव बिकम सो स्मार्ट कि एक इन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेल अगर आप अटैचमेंट लगा के भेजते हो और एक में नहीं लगाया तो वो आपको रिमाइंडर देता है कि मे बी यू हैव फॉरगॉटन टू अटैच समथिंग, तो व्हिच इज गुड। बट अगर सारे सिस्टम उतने रोबस्ट नहीं है देन ऑफ कोर्स यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर जीमेल वगैरह यूज कर रहे हो उसमें ऐसे रिमाइंडर वगैरह कुछ नहीं आता, उसमें जो आप भेजते हो वो चला जाता है। नाउ टू फील्ड, जिसने इंफॉर्मेशन मांगी है या जिसने एक्ट करना है, ये दोनों को ही मार्क होना चाहिए और किसी की जरूरत नहीं है इसमें मार्क करने की। और किसको भेज रहे हो उसको भी देख लो। कई बार हम रिप्लाई ऑल करते हैं तो ऊपर नीचे भी हो जाता है कि नहीं, गलत मेल भी चला जाता है। तो दिस इज वन शुड बी केयरफुल ऑफ। सीसी ओनली तभी करो, सीसी का मतलब पता है ना, कार्बन कॉपी। तो आप तभी कार्बन कॉपी करो उसकी जब जरूरत है उसको, जिसको जरूरत नहीं है उसको करके क्या फायदा होना है, राइट? ओवरयूज लीड्स टू ईमेल्स बीइंग इग्नोर्ड एंड सीसी में मोस्टली यही होता है। अनलेस जिसको कर रहे हो उसका तो कोई काम ही नहीं है तब तो वो पढ़ेगा, बाकी अदरवाइज उसको थोड़ी इट्स जस्ट फॉर हिज और हर इंफॉर्मेशन। And using BCC in official mail unless there is a clear direction from your organization. So in your case, अगर कस्टमर के केस में बॉस ने बोला है कि मुझे मार्क करो तो करो, अदरवाइज डोंट डू इट। सब्जेक्ट फील्ड एम्प्टी मत करो। 5 से 6 वर्ड्स का मैक्सिमम सब्जेक्ट होना चाहिए, बिकॉज इफ यू इंक्रीज सब्जेक्ट लेंथ देन उसका मैसेज क्लियर नहीं जाता है। सो दिस इज समथिंग व्हिच टू बी माइंडफुल ऑफ। स्पेसिफाई व्हाट इज द ईमेल अबाउट, क्लियर होना चाहिए। टाइटल केस मालूम है क्या होता है? What is title case? So when you are writing, say a sentence, the quick brown fox. अब इसमें अगर हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है अगर वो कैपिटल है तो that is known as title case. So Q बड़ा हो गया, T बड़ा हो गया, brown का B बड़ा हो गया। तो it is recommended कि जब आप मेल भेज रहे हो तो सब्जेक्ट लाइन में टाइटल केस को यूज करो। Why? Readability easy रहती है, so that the person who is going to receive it is able to understand it better. Don't use reply or forward if it's first mail. Of course, that is out of question. अपनी subject line में question मत डालिए, exclamation mark मत use कीजिए और greetings वगैरह मत use कीजिए in your subject field. This has to be strictly avoided.
क्या यूज कर सकते हैं? अगर आप पहले कनेक्ट कर चुके हैं देन ऑफ कोर्स RE कैन बी यूज्ड इन टर्म्स ऑफ रिप्लाइंग एन ओल्ड मेल. व्हाट इट मींस कि जरूरी नहीं कि when you send mail somebody replies from there then only RE can be used. अगर आप अपनी ही मेल पे फॉलो अप भी कर रहे हैं then this can be used. It is okay. Include numbers. अगर numbers यूज कर सकते हैं मेल में to clarify your point you can do that. Title case as I already suggested makes sense. Keep your subject lines to 5 words or less. करते हैं ऐसा? You are doing good. If there is something missing, start doing it. That's the whole idea. Body of the mail content. इसमें let me just highlight the important one. This is everyone clear? कि red font is to be avoided. नहीं use करते हैं. नहीं पता? Red क्यों नहीं use करते हैं? Sort of threatening or It is in every case. तब everywhere रेड ईमेल में नहीं यूज करते बिकॉज ये तभी यूज होता है जब आपके बॉस बहुत गुस्सा है या फिर कस्टमर काफी गुस्सा हो जाते हैं तो दे एक्सप्रेस देयर डिस्प्लेजर बाय यूजिंग द रेड फॉन्ट. तो कॉमन कम्युनिकेशन में इट हैज टू बी अवॉइडेड. ओके, इमोट आइकन्स अवॉइड करने हैं. आपका जो भी इमोट आइकन्स यूज करते हैं आज अपने मैसेजिंग में ना तो कई बार वो उसमें भी आ जाता है. jargons and slangs as I stated earlier these have to be avoided. Objective, action, grammar, spelling, this is something which you already discussed, and keeping your sentence short. So this is one page summary of how your email to be drafted. So be careful about these things, emoticons and abbreviations. This is normally where the mistake. Now these are the power phrases which you can take care of. कई बार क्या होता है email communication में फ्लैट रिप्लाईज भेज देते हैं या इमोशनल रिप्लाईज भेज देते हैं. कई बार these are the power phrases. अगर आप इनको यूज करो, you are right, I would love to help on this, I can fix this, I will keep you updated. So that helps the other person to get grasp the matter and it also helps in effective communication. So that is where. So for example, you are right, we could definitely do this better. So many times जब customer grievances आ रहे हैं या internal customer से भी आपके पास grievances आ रहे हैं, in those scenarios, these can be used. So try using some of these power phrases instead of every time trying to counter the point of others. Clear? So these are salutations which are quite clear, evident. Formal में कैसे करते हैं, very formal में करते हैं. आप लोग क्या यूज करते हो? Dear sir, dear madam, ये यूज करते हो ना सर? So that's fine. So let's move on. And now this is a common mistake. कई बार हम क्या करते हैं email communication में forget punctuation. एक सेंटेंस फिनिश हो गया, उसमें फुल स्टॉप नहीं रहता है. या अगर हमें क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है वो तो नहीं रहता है, तो वो जरूरी लगेगा. एंड मेनी मेल्स अनलेस इट इज अ प्रॉपर ड्राफ्टेड जिसको आपने कई बार देखा और किसी बाहर भेज रहे हो कस्टमर को टेम्पलेटेड है, देन तो वी टेक केयर ऑफ दिस थिंग. बट इफ इट इज अ रेगुलर कम्युनिकेशन दिस इज मिस्ड आउट. So this is something to be taken care of. So this we have already discussed. Now these are the common fonts, recommended fonts. आप लोग कौन सा यूज करते हो यहाँ पे? Arial and Verdant. So these are the recommended fonts because किसी भी सॉफ्टवेयर में आप चलो या ईमेल सिस्टम में तो नॉर्मली चेंज नहीं होता है. तो द मैसेज का जो प्रेजेंटेशन होता है, विजुअल एस्थेटिक्स होता है, इट इज गुड. इट इज फॉर दिस रीजन these are recommended. आप अगर हाईली स्टाइलिश यूज कर लेते हो then it becomes a problem. So these are web safe fonts. Okay. Format headers so that they stand out. Headers हो या आपका सब्जेक्ट लाइन हो गया, जो स्टार्टिंग पे आप कर रहे हो. आउट ऑफ ऑफिस यूज करते हैं? नहीं यूज करते हैं. When you are going for a leave, तो एक आउट ऑफ ऑफिस का ऑटो रिस्पॉन्डिंग मैसेज होता है, करते हो आप? You are not using. So this you should be using because इससे क्या है कि the person who is sending you the mail, especially those who are dealing with external stakeholders, की customers या बाकी से भी, they are informed. कि I will be back on so and so date, and the next step could be in my absence if there is any urgency, you contact this person. कई बार जब ये नहीं आता, the mail is landing into your inbox, customer is thinking कि मैंने तो mail भेजा, उसका tag चालू हो गया, आप बोले मैं तो आज आया आज देखा. So this is an important tool which can be used out there. Any questions? Any doubts? Clear? An overdue mail could be a lost opportunity. तो अभी तो मैंने कस्टमर सर्विस के केस में बताया, it could be also a scenario
where say somebody is willing to buy something from you और आप नहीं थे, रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो हो सकता है वो किसी और के पास चल रहा है. तो कस्टमर ग्रीवेंस भी हो सकता है and it could be lost sale also for. Now let's come to non-verbal. So this was the highlights of verbal that we covered. So non-verbal में eye contact, body posture, facial expression and gestures. So these are the important things. So this is the 55% which matters. Now let's do it a little interactive. Now these are the types of non-verbal communication. What I would like, I'm going to show you a pic and let me see how many of you are able to guess correctly what is it that we're talking about. Clear? Abhi first, what is it that we're talking about? Which type of communication is it? Dynamics. क्या समझ में आ रहा है? ये नॉन वर्बल है सारा. अब नॉन वर्बल में सब टाइप्स हैं हमारे पास, तो लेट्स लुक एट इट. जल्दी बोलो, बहुत इजी है. फेशियल, दिस इज मोर फेशियल जेस्चर्स. कि फेस से आपको समझ में आ जाता है ना. देखिए ये कस्टमर कहीं से मार खा के आया है तो भी उसकी शक्ल देख के समझ में आएगा, बीवी से झगड़ा करके आया तो भी समझ में आएगा, और कहीं से लॉटरी लगी है तो भी समझ में आ जाएगा. लॉटरी लगी है तो क्या करना है, बेचो. आर्टिफैक्ट्स, क्या मतलब है इसका? हाँ जी, सेंस ऑफ ड्रेसिंग. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो वो बहुत जरूरी है ना. सपोज करो आप क्या प्रॉपर्टी प्राइस सेल करते हो, क्या प्रॉपर्टी के टिपिकल प्राइस करते हो? 1.5 काइंड ऑफ. नाउ इन 1.5 का अगर कोई खरीदने जा रहा है फ्लैट एंड द पर्सन हु इज सेलिंग इट, अगर वो खुद ही अच्छे से ड्रेस नहीं है तो सामने वाले को कॉन्फिडेंस नहीं है. Have you ever seen a salesman of a Mercedes or BMW? देखा है? एक मारुति वाले को भी देख लिया. तो this now why I'm saying so, these are the things जो हम unconsciously communicate करते हैं. उस हम consciously कुछ नहीं कर रहे, हम हमारे पास तो जो है हम वैसे ही कपड़े पहन के आ गए. We are not conscious, but सामने वाला जो है उसका interpretation निकालता है. Proxemics, डिस्टेंस के. अगर आप बहुत ज्यादा किसी से पास जाके बात करते हो, दैट मींस व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गोइंग बियॉन्ड द सेफ टेरिटरी. इट शोज कि आपको मतलब किसी के वो प्राइवेसी का रिस्पेक्ट नहीं करते हो. पीपल गेट ऑफेंडेड. और अगर बहुत दूर हो गए तो मतलब डिसइंटरेस्टेड. क्रोनोमिक्स, कस्टमर ने बुलाया 4 बजे, आप पहुंचे 4:15 बजे, 15 मिनट ही तो लेट है. वो कस्टमर तो स्टिकलर है टाइम का. व्हाट ही सेज कि आपने उसके 15 मिनट्स की वैल्यू नहीं किया. So that means you are casual about your work. So if you are casual about your work, how can I give you my money to buy a property because I am not sure what is it that I am going to get later on. Unsaid communication. Vocalics, sounds related. Haptics, sense of touch. How you are touching someone, how you are holding somebody's hand, that also communicates. तो अभी आगे हम देखेंगे. हैंडशेक में अक्सर ये आता है कि आप किसी का हाथ किस तरीके से शेक कर रहे हो. That also makes a difference. Communicates a lot about your persona. अब नॉन वर्बल में बेसिक फैक्टर्स. नॉर्मली जब बात कर रहे हो स्टैंड अप एंड टॉक, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इफ द अदर पर्सन इज आल्सो स्टैंडिंग, सब बैठे हुए हैं तो दैट्स फाइन. Usually in meetings you will see कि when somebody has to make a point, it is recommended कि खड़े होके आप बोल दें. बहुत सारी मीटिंग्स में आज की डेट में बोला जाता है no issues, you can continue sitting and talking. आप देखोगे इसमें 2 चीजें होती हैं. एक तो जैसे ही आप कमांड हुए खड़े हुए ना तो सबका आप अटेंशन ले लेते हो, तो you get more opportunity to express yourself. जहां आप बैठे हुए हो जैसे ही आपने कुछ बोला उधर से कोई और भी कुछ बोल देगा, तो you get interrupted frequently and communication flow gets disturbed. So all of you who are here, Guru Mantra, whenever you want to make a point, stand up. People will give you attention and then you will be able to
Make your point. Keep erect posture, maintain eye contact, do a confident handshake. एक और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है. We want to listen to people who are above us. तो जैसे ही आप खड़े हुए आप बाकी से ऊपर उठ गए ना, so they also give you attention from that point of view. Okay, do a confident handshake, use gestures effectively, smile often, maintain personal space. So all those things which we discussed earlier. Don't put your hands into pocket while you are talking, standing, communicating. Don't put your hands in the pocket. Slouch समझते हो? Erect is straight and slouch is something like this. कुछ लोग ऐसे यहाँ बात करने के लिए आएंगे तो they will be standing like this, taking some support. Intentionally नहीं है, but this is the habit. Fidget समझते हो? ये जो मैं अभी कर रहा हूँ, तो this is known as fidgeting. मतलब हाथ का कुछ कर रहे हो, कभी ये उठा रहे हो, कभी वो रख रहे हो, क्या होता है इससे? डिस्ट्रैक्शन होता है, सामने वाला डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फ्लो ही टूट जाता है. रोल आइज, इधर उधर देखो. इट्स ऑलवेज दैट व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी, लुक इनटू देयर आइज. घूरना नहीं है, तो एक बार वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, बट द ओनली थिंग इज कि लुक एट देम. मेनी पीपल हैव दिस हैबिट. अब ऐसे करके आप किसी को देखने पड़ जाओ, वो सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाए. Stare with the blank expression. So this is also not recommended. Now these are the approaches of how you can greet others. ये कैसे कर सकते हो? So positive approach, maintaining right kind of distance. So this is a negative approach. So while on the one hand there is कि आप किसी के private space में intrude कर रहे हो, then there is also जब आप दूर से हो, clearly lack of interest लग रहा है कि वो interested नहीं है, जबरदस्ती लिया अपनी जगह से हिलना भी नहीं चाहता है, इतना inertia है. Now this is conversation distance, this is right distance, this is getting too close. Handshakes. So handshakes का एक अच्छा इंसिडेंट है. So when I was new, तो मैं मिडिल ईस्ट में गया था जॉब करने के लिए और रियल एस्टेट में था वहाँ पे. तो इनिशियली when I used to go there ना, तो वहाँ पे क्या बिजनेसमैन तो थे, लेकिन वो बिजनेसमैन वैसे थे, वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे. So there were people who knew how to earn money. लाला टाइप, if I categorize them, तो लाला टाइप. हम फ्रेश MBA ग्रेजुएट ये सब पढ़ के चले गए. अब हम जाते थे वहाँ, उनसे हाथ ऐसे मिलाते थे और उनका हाथ आता था ऐसे. हमको समझ में नहीं आता था. Earlier we used to think कि इंटरेस्ट ही नहीं है इनका हमारे में, they don't want to get into business. Now later on I came to realize कि वो उनकी अवेयरनेस ही कम है. हालांकि if you see these are different kind of handshakes. So if you give your hand like this, देखा है किसी को, लोगों को देखा है, कोई आपके पास हाथ ही ऐसे बढ़ाएगा, what it indicates, क्या मतलब करता है? आप दिखाओ हाथ अपने. So if I give like this, क्या है? I am a dominating character. मैंने क्या किया, सीधा हाथ ही ऐसे लाया, उनको लाना ही नीचे से पड़ेगा. So it indicates domination and arrogance. दूसरा जैसे मैंने बताया, आप हाथ बढ़ाओ और मैं ऐसे दे दूं. This is lack of interest, या इसको बोलते हैं limp handshake. ठीक है ना, हाथ दे अनकॉन्फिडेंट. सो फॉर यू दिस इज ऑल्सो नॉट गुड. अ हैंडशेक शुड ऑलवेज बी फर्म. ठीक है. इफ समबडी इज पुटिंग यू लाइक दिस, यू कम, आप ऐसे ऐसे करके लाओ ऊपर से, हाँ, देन यू टर्न इट अराउंड. हाउ? बाय स्टेपिंग, टेकिंग अ स्टेप टुवर्ड्स हिम, द पर्सन, एंड देन यू टर्न इट अराउंड. Because that confident handshake is very, very important, especially in those cases where people are aware of this, who are able to judge your body language. As you to receive education level बढ़ गया है, what I am talking about was maybe 20 years back. तो उस टाइम पे कुछ और था. आजकल सबको सब पता है, YouTube ने सब सिखा दिया. This is limp fish, what I was showing you. This is death grip. The death grip mostly जो body builders होते हैं ना, और जो नए जिम जाना चालू करते हैं, वो ऐसे दिखाएंगे, ऐसे. So not recommended in professional space, and then there is this awkward form grade. What we need to do. Let's look at it, and तब तक आप लोग दिखाओ. एक छोटा सा एक वीडियो है 3 मिनट का. First scenario में what happened? What was happening in first scenario? पहली बार में उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि क्लाइंट आ रहा है, उसको एंटरटेन करना. उसने yes. तो अपने डायबिटिक आदमी को समोसा और पेस्ट्री ऑफर कर दी. सेकंड में क्या हुआ? सेकंड वाले में क्या था? इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस था.
उन्होंने बोला कि मुझे चाहिए नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक तो मंडे से सैटरडे है, तो जिसने कम्युनिकेट किया उसने इंटरप्रेट किया मंडे, जिसने रिसीव किया उसने इंटरप्रेट किया उसको फ्राइडे। So that is why there was a lack of communication because it was not specific. When you say next week, तो next week हो गया। थर्ड वाले में था कि वो न्यू पर्सन, कोई न्यू टीम ज्वाइन कर रहे हैं and she was taking feedback about the boss. तो अगेन उसको छुट्टी चाहिए थी, based upon third person's feedback, she was deciding कि whether she should ask for leave or not without actually going to the person. तो इसमें भी क्या था, communication ineffective हो गया because you are relying on third person's interpretation for your requirement. Clear? So the purpose of showing you that video was listening. So this is the most important and one of the key things that is missing in today's day and world. ये लोग सुनते नहीं। As a coach जब मैं लोगों के साथ काम करता हूँ तो कई बार मुझे रिक्वेस्ट आती है कि we want some solution, और मैं उसमें तो the only solution which I gave कि मैं आधे घंटे उनको सुन लेता हूँ, सॉल्यूशन उनके पास से खुद निकल के आ जाता है। तो they don't have anyone to listen to. This is the missing skill. अगर देखो तो ये सबसे पहले हम सुनना सीखते हैं, फिर बोलना सीखते हैं, फिर पढ़ना सीखते हैं, फिर लिखना सीखते हैं, और फिर जब यहाँ पर आ जाते हैं तो हम इसको भूल जाते हैं। So that is why since it is the primary skill, कोई भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी हो सकता है जब हम अच्छा समझ पाए, more so in customer facing roles and scenarios, क्योंकि उनकी जब तक हम रिक्वायरमेंट नहीं समझेंगे आप उनको सर्व कैसे कर पाओगे बेटर? You can't serve them better. Hearing और listening में कुछ डिफरेंस पता है क्या होता है? Hearing और listening डिफरेंस क्या है? सुनना हो गया और वो समझना हो गया, समझना हो गया, और ये बता सुनने की जगह पे ध्यान क्यों रहे हैं? हाँ, सो सुनना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अगर आपके कान ठीक ठाक कर रहे हैं तो बाहर भी जो भी साउंड होगा आपको कान में तो आएगा, ठीक है। लिसनिंग जो है वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। जब तक उसमें दिमाग का यूज नहीं करोगे तब तक समझ नहीं पाओगे। तो अभी साउंड के पीछे से कुछ बैकग्राउंड का आ रहा है, एक साउंड तो आ रहा है, बट जब तक उस पर ध्यान नहीं देंगे तब तो फोकस यहाँ रहेगा। जब वहां ध्यान चला गया तो यहाँ छूट जाएगा। फिजिकल कैपेबिलिटी है, नेचुरल है, इसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप होता है, और इससे कुछ इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता। तो बोलते हैं ना कि बच्चे सुनते नहीं है, स्टाफ सुनता नहीं है, तो सुनते तो सब है, समझते नहीं। So that's the problem, ठीक है। और समझते क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बैरियर है। या तो हम उनकी लैंग्वेज में नहीं बोल पा रहे हैं, या हमारी लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे हैं, या क्यों है वो वाई क्लियर नहीं। तो अगर वो भी क्लियर नहीं होता तो नहीं होता, उसमें अटेंशन चाहिए होती है। That's what we need to understand. So this is why listening is important. कॉन्फ्लिक्ट हद तक कम होती है, इससे कोऑपरेशन बढ़ता है, पर्सनल स्किल्स बढ़ती है, मेमोरी बैंक बढ़ता है, और जो बोलो ना वोकेबलरी कम हो जाती है। कई बार आप जब ज्यादा सुनते हो तो आपकी वोकेबलरी भी एक्सपैंड होती है, आप ज्यादा समझ पाते हो। Now these are the ways in which in business it is important. Information मिलती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाते हो, बेटर रिलेशनशिप डेवलप कर पाते हो, और अल्टीमेटली all these things helps you in making better decisions, and better decision is what makes you a better human being, and a better human being is able to do better business. So it's all interconnected. अब effectively listen कैसे करें? देखो listening के ना बहुत सारे तरीके की होती है, बट जो एक listening skill हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, that is known as active listening. Okay, तो बाकी बहुत तरीके की होती है, but let's talk about this. This is इसके 5 steps होते हैं: receiving, understanding, remembering, evaluating and feedback. Now the first step, receiving, कौन सा organ है? Ear. So hearing वाला part यहाँ से हो जाता है. So this is the primary through which we receive information when we are listening. Understanding, mind use हो रहा है, तो पहले जो सुना उसको इंटरप्रेट करना है, समझना है कि वो क्या है। समझने का मतलब क्या हुआ? ग्रास्प करना कि जो बोला जा रहा है समझ में वही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है। रिकॉल करना, क्योंकि अगर गजनी देखी थी मूवी, यहाँ तक सब ठीक था, यहाँ से प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेम्बर इंफॉर्मेशन,
देन ऑफ कोर्स आप उसको रिवर्ट कैसे कर पाओगे, रिस्पॉन्ड कैसे करोगे, कौन सा ऑर्गन यूज हो रहा है, माइंड। तीसरा क्या है, नेक्स्ट स्टेप हो इवैल्यूएट। इवैल्यूएट मतलब से अगर मैं कम्युनिकेशन के बारे में आज आपको कुछ बता रहा हूँ, आपने से किसी ने पहले भी कुछ सुना है या कोई लेक्चर अटेंड किया है या पढ़ा है, तो व्हाट विल यू डू, जो मैं बता रहा हूँ उससे कंपेयर करोगे, यू विल इवैल्यूएट कि ये सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, नहीं है तो देन यू विल आस्क क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल जब हमने जार्गन को लेके किया तो डाउट आया कि अगर मैं ये स्क्वायर फीट नहीं यूज करके बताऊंगा तो हाउ विल कस्टमर अंडरस्टैंड, उनको पता होता है क्लियर। सो देन वी इवैल्यूएट कि व्हाट इज बीइंग सेड, वो हमारे जो सोच है, जो हमारे बेंचमार्किंग है उससे कनेक्ट करता है कि नहीं करता, एंड देन ओनली यू रिस्पॉन्ड। तो 5 स्टेप्स हैं, 3 में क्या यूज हो रहा है, माइंड। सबसे ज्यादा यूज क्या करते हैं हम, जो लास्ट में है ना, देखिए हमको सब पता है, हमको सब पता है। सो विदाउट लिसनिंग स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग, यस 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 दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। वो बोल रहे थे ना, यस 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 आई नो आई नो आई नो, दूंगी। और फिर डायबिटिक को क्या दिया, समोसा। तो आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट कुछ और है, उसको दोगे कुछ और। अफोर्डेबल कस्टमर को 1.5 करोड़ का फ्लैट दिखाओगे तो वो तो लेने नहीं वाला। So these are the ways in which you can practice active listening. Attentive मतलब ध्यान केंद्रित रखिए, जिससे बात कर रहे हैं, जिसके साथ हैं, प्रेजेंट में रहिए, पास्ट और फ्यूचर में मत जाइए। मन बड़ा चंचल है, ट्रैवल बहुत फास्ट करता है, तो उसको रोक के रखना जरूर। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब जब किसी के साथ कन्वर्स कर रहे हैं तो क्वेश्चंस पूछिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, जिसका आंसर कुछ भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल आप सब लोगों ने लंच किया, आज लंच किया था, कितने कितने लोगों ने किया, वो यस बोल लें, यस। कितने लोगों ने नहीं किया, वो नो बोले, नो। दो ही बोल सकते हैं यस और नो। तो ये कौन सा हो गया, क्लोज एंडेड। अब मैं पूछूं लंच में क्या खाया, सबके अलग अलग आंसर्स होंगे। दीज आर ओपन एंडेड क्वेश्चन। सो व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद द कस्टमर, पहला ये होना चाहिए, sir, is it the right time to talk? Yes or no? Then you go about, are you interested in this and this? Yes or no? Then you go about, would you like to know about this? Yes or no? फिर उसके बाद अपनी वो बताओ। ये नहीं है कि फोन उठाया, हम यहाँ से फोन कर रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इतने मिलियन स्क्वायर फीट का, इतने स्क्वायर फीट का, आपको फ्लैट चाहिए। डेली 3 नंबर ब्लॉक करता हूँ, फिर भी मेरे पास फोन आते हैं फ्रॉम डिफरेंट, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट, इट इज इन डिफरेंट सेगमेंट्स। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। प्रोबिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, वी हैव टू ट्राई टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर, मोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर। रिक्वेस्ट, क्लैरिफिकेशन नहीं समझ में आया तो आप क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं, पैराफ्रेज कर सकते हैं। अपना पैराफ्रेज इज इंटरेस्टिंग, जो कस्टमर ने बोला उसी को अपने शब्दों में बोलना है। फायदा इससे ये होता है कि अगर कहीं डिस्कनेक्ट है तो आपको मालूम पड़ जाएगा, आपको भी क्लैरिटी हो जाएगी और उसको भी, दोनों सेम लेवल पे आ जाओगे। फीलिंग सामने वाले की भी समझो, अपनी भी कम्युनिकेट करो और समराइज। जब एंड में डिस्कशन हो गया तो समराइज करो ना। दिस इज अबाउट व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद पीपल, हाउ टू शो दैट यू आर अ गुड लिसनर, प्रैक्टिस कैसे करनी है। और एक्टिव लिसनिंग के लिए दिखावा नहीं करना कि हाँ 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 करते जाना, बट एक्चुअली नहीं समझ में आ रहा है। सो दैट्स व्हाई इफ यू सी क्वेश्चंस यहाँ कई बार दिया हुआ रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन, क्योंकि वो जब तक नहीं आएगा तब तक आप एक्चुअल में नहीं समझ पाओगे। हाउ कैन यू डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट कैसे कर सकते हो, पॉजिटिव एनकरेजमेंट। जब कोई बोल रहा है तो उसको एनकरेज कैसे कर सकते हैं, थ्रू साइंस, थ्रू वर्ड्स हम पॉजिटिवली एनकरेज कर सकते हैं। क्लैरिफाई करने के लिए अगर आप क्लैरिफाई करते हो डाउट, तो सामने वाले को समझ में तो आ जाता है कि आप सुन रहे, समझ भी रहे। अगर बिल्कुल बुत बन के बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो सब ऊपर से जा रहा है, राइट? ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना। क्वेश्चनिंग, समराइज, ठीक है। नॉन वर्बल साइंस, नॉन वर्बली आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, स्माइल करो, आई कांटेक्ट मेंटेन कर रखो, डिस्ट्रैक्ट मत हो, एंड मेंटेन योर पोस्चर। दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्रेस। नाउ व्हेन यू आर इंटरैक्टिंग विद कस्टमर्स एज अ सेल्स पर्सन, एज अ कस्टमर फेसिंग रोल, और आपस में इंटरनल स्टेक होल्डर्स को भी कर रहे हो ना, दिस हेल्प्स यू इन योर इंटरपर्सनल स्किल्स। लोगों के साथ कनेक्शन आपका बेटर बनता है जब आप सामने वाले को वैल्यू देते हो,
तो वो भी आपको दे, नहीं तो आप भी मोबाइल में बात करते करते सुनना किसी को, तो सामने वाला भी मोबाइल में बात करते करते ही आपको सुनेगा. So this is what is going to happen. So that brings us to the end of it. एक छोटा सा क्विज है, जिसको आंसर आता है वो हाथ उठा देना, ठीक है? तो उसको बोल देंगे आता है, फिर बाकी हम लोग सब उसके लिए क्लैप करेंगे. और मनीष जी कुछ गिफ्ट देना चाहे तो मनीष जी दे सकते हैं. सैंडविच तो उसको मनीष जी दो सैंडविच दे सकते हैं. What does verbal communication comprise? Words, grammar, right message at the right time, nodding, posture, gesture, eye contact, and all of the above. Yes, sir. Okay. Any other answer? C. Okay. A, C, C. Okay. कितने C? आप भी C में आ गए ना? अच्छा C बोला. A किसने बोला था? आप A में C में? C में? A पक्का? ताली बजाओ सर के लिए. ये तो बहुत सही है. मेरे भाई ये बताओ, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर पोस्चर, जेस्चर, आई कांटेक्ट, एक्सप्रेशन कब बताया मैंने? ये तो नॉन वर्बल का पार्ट है. सब ऊपर से जा रहा कम्युनिकेशन बिल्कुल अच्छा. वेरी गुड. सर डिनर को बता दो कौन है? डिनर तो ये है ना. इनकी प्लेट में सैंडविच और रखवा दीजिए. अच्छा कॉफी मिलेगी. चलो टॉफी है. व्हाट डज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कंप्राइज? Words, grammar, right message at the right time, just nodding, posture, gesture, eye contact, all of the above. मैंने क्या बोला था? जिसको आता है वो क्या करेगा? Listening बड़ी प्रॉब्लम. हाँ बोलिए. C और और कोई है? B and C. इसमें किसी का नहीं बोलेगा. एक कॉपी बच गई. जस्ट नॉटिंग भी तो है ना, नॉन वर्बल में तो ये भी आता है हमारा. क्लियर है? क्यों है? बॉडी लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ B. पक्का? और ऐसा जो एक बोल रहा है बी. ताली बजा लो सब अपने लिए ना. अच्छे से बताओ. Very good. What are the two types of questions in effective probing? अच्छा probing पता है आप लोगों को? नहीं पता है? चलो मैंने probing समझाया भी नहीं है. Guess कर लो इसको. Let's see ये समझ पाते हो क्या नहीं? Close, open-ended, open close-ended, open-ended close-ended. Open close-ended. Okay. I think Open-ended. C. ओके. देखो इसका आंसर है C और D. मैंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया था, बट जो आपको मैंने एग्जांपल दिया था ना, खाने में क्या खाया, तो वो ये हो गया क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड. जब मैंने पूछा खाना खाया कि नहीं खाया, वो क्या था? क्लोज एंडेड. या कस्टमर को बोल रहे हैं कि इज इट द राइट टाइम टू टॉक, आर यू इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट, आर यू लुकिंग फॉर बाइंग फॉर प्रॉपर्टी. तो ये सारे क्लोज एंडेड है, क्योंकि इनका आंसर खाली दो ही हो सकता है, या तो हाँ या ना. जब उसको हाँ क्वालिफाई कर लिया, और इनका यूज क्या होता है, हम क्वालिफाई करने के लिए करते हैं कि कस्टमर को क्वालिफाई कर लें कि हमारा राइट कस्टमर है भी कि नहीं, या राइट प्रोस्पेक्ट है कि नहीं. कस्टमर भी प्रोस्पेक्ट बोलेंगे उसको. तो जब आपने ये पूछ लिया, क्वालिफाई हो गया क्लोज एंडेड से, देन यू गोइंग टू ओपन कि ये प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ थिंग, एंड देन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट. सो दिस इज इट. सो ओपन एंड क्लोज एंड. सो दीस आर द टू टाइप्स ऑफ प्रोग्राम. व्हाट मेक्स एन इफेक्टिव एंड कंप्लीट कम्युनिकेशन? American accent with rich vocabulary, good use of non-verbal communication is equal to effective communication. Verbal plus non-verbal is equal to effective, or none of these. C. Anyone for A? No. चलो सबने सही जवाब दिया. एक बार और. ये थेरेप्यूटिक होता है, इससे एनर्जी आती है, मालूम आपको? मोशन क्रिएट्स इमोशन. आपकी ताली से आपको भी खुशी मिलती है, सामने वालों को भी खुशी मिलती है. तो क्या करना चाहिए? खुशियां बांटते रहना चाहिए.
जब मौका मिलता है, जब बहुत से डांट पड़ रही हो तब ताली नहीं बजानी है. Which of the following actions help you listen actively? Paying attention, not responding, avoiding the speaker's gaze and seeking clarification. Active listening का कौन सा साइंस है बताइए. A or C? A and D. अच्छा, एक ऑप्शन आया हमारे पास A and D. A and D यानी paying attention and seeking clarification. Okay. और anyone for this? No. Anyone for this? नहीं? सही. Create energy. अब इसके अंदर W इनकरेक्ट कौन सा है वो बताओ. ऑड वन आउट आता था ना. व्हाट्सअप एकदम सही, सब इंटेलिजेंट हो गए. इफेक्टिव प्रोबिंग हेल्प्स यू किस काम में मदद करती है. अब प्रोबिंग समझा दिया मैंने, अब बताओ. हेल्प्स यू इन C. C. हाँ C. C. सी. इसमें नहीं. C. Create energy. Which of the following verbal and non-verbal responses provide positive feedback while listening actively? Okay. D. Anyone for B and C? नहीं है ना? मत करना. कुछ लोगों को मैंने ये देख लिया था ये करते हुए. Correct answer. Okay, clap for yourself. So that brings us to the end of today's session. Thank you very much for listening patiently, without any disturbance and giving the undivided attention for 90 minutes, which is very difficult. आज की डेट में 30 सेकंड से ज्यादा अटेंशन ग्रैब करने में इंस्टाग्राम पे भी लोगों को दिक्कत होती है. तो 90 मिनट्स तो बहुत. Thank you. Thank you, sir.